Welcome Avik, Manisha, Jagdish, Ruchika, Arif. Good morning, Vijeta. Good morning, everybody. Dinesh, welcome. Utsav, welcome to an academy. Satyaprakash, welcome to the class. Ankit, good morning, welcome. Everybody, good morning from my side. May God bless you for good preparation. Neeraj, welcome. Ravi, welcome to the class. We just wait for 2 more minutes and then start and go. And as all of you know that he is one of my greatest idols in my life. Good morning. No, first we are having first two sessions on 20th and 21st. 20th is answer writing for questions. 21st is uh, case study practice. And once this course is complete, then every day we will be doing one day case study, one day question for 10 days continuously. I am always there and we remember it. Ruchika, where did whom you are talking about? Welcome, Raju. Rohit, Achal. Yes, Dr. Kalam, you just come to know. He stated one sentence which signifies from where did he learn it. What promise? Sorry, Ranveer, what promise? Sorry if I've done that. I'm really sorry. Just tell me. Actually, no. Nowadays, I am the chairman of their mock interviews board, so I have to make a lot of preparations. So sometimes something slips, but I don't commit such blunders. Oh, yes. I remember it. Now I remember. Okay. Dhananjay, welcome. Sita, Devi, everyone welcome. Now let's start the class. So, uh, of course, it is 97 double nine double eight double seven double one. Very simple to remember. 9799887711, and this is my number of my WhatsApp group also. Okay. Uh, Welcome Sabran, Tushar, and Swati. Okay. So this is me, Rakesh Verma. I have done my MA Economics, BTech, MBA. I joined IS in 1981. I am former Additional Chief Secretary.
And my referral code is VRakeshV281, which if you want to use and if you want to join Unacademy Plus platform, uh, I would suggest that at least for next 3 months, you should join, 3 to 6 months. There you will be getting very intensive inputs and detailed studies, all case studies, then questions preparation, then discussions, all those things they happen there if you wish. And there, then you can use my referral code if you want. Okay. So here is the great man. Okay. You know, I started liking him very, very much when I was very small. And I used to wonder that what he's doing. And when I entered into IAS, after that, his journey was very, very fast. Later on, when I became Secretary Science and Technology, I got an opportunity. First opportunity of meeting him was when I was Secretary Science and Technology. And he was not president at that time. So it was a very great experience. And I was amazed that how can someone be such great and such idealistic person in life and actually implementing all those ideals. So that was really very, very great about him. And that impressed me to such an extent that when I was posted in Delhi, then my meetings with him increased a lot. When then he was president, but he allowed me to meet quite often. And I can just tell you one incident when we were in a function. All very, very senior officers were there. So they said now Rashtragan. So the music, the recorded Rashtragan did not play. So everyone was standing silently. So he came forward on the stage and he started reciting it in loud voice. And everyone got together and everyone chanted it with such a huge noise and very, very fine tune. So that was the man, he did not bother whether he is the president and he should wait for the music system and everything should be in force and then only I will start and I will participate and I will stand and no, nothing. He directly went in for it. Okay. So he said, evolving citizens with value systems. Very important thing. Evolving citizens with value systems will lead to a prosperous and peaceful world. Very important things he is saying here. He is saying evolving citizens. Evolving citizens means the citizens basically who are not trying to understand what ethics are, what morals are, what value systems are. That was his emphasis. That moral citizens, if we just go on turning like this, and if we improve our value system, if we detach ourselves from this physical world, the material requirements, then certainly we shall be leading towards a prosperous and peaceful world. And prosperity, he meant that everyone should be able to recognize the problems of others. This is one of the most important ethical principles. And his life was based on this. Now let us see. Before going further into details, let me tell you a few very, very important motivational quotes. And these motivational quotes are useful for you people also. Adopt them, think of them, and then you will find that you get super strength because of these principles and these quotes. First is, he says, motivational sources should lie within yourself. So there's no need of any searching for that. This is the person, my motivational force. I am motivated by this person. No, he always used to say that you should get motivated by your own existence. And once you start getting motivated by your own qualities, your own successes, small successes, day to day, then no one can stop you from achieving your goal. So for civil services, it's very important. I have chosen all those which are relevant to you. So he says the motivational sources should lie within yourself.
and no one can stop you from achieving your goals. Very important thing. Most of the people who are guiding you, yesterday also I was seeing one video and I was disappointed and disheartened. I talked to that person in the night. He was in the class, he was telling that if you just cut your body from one point or the other, and instead of blood, it will not give you blood. It will give you this and this paper questions. This is said. This said. This should not be done. There's sentimental disturbance to the students. No one is that great. Being great, you have to be very different than anyone else in this world, as Abdul Kalam was. Then he says, the best work required more ability than I possessed. What a great acceptance. He said कि मुझे मेरे अंदर जितनी मैं सोचता था कि मेरे अंदर क्षमता है, राइट, मेरे हर कार्य में मुझे उससे ज्यादा चाहिए थी. तो हमेशा मुझे लगता था कि मेरे पास क्षमता कम है, मेरी जो मैं कर रहा हूं उससे बहुत कम है मेरी क्षमता, और उसके लिए इसलिए मुझे आवश्यकता है हेल्प की, कि जब जो मुझे करना है मेरे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं है, खुद के लिए कह रहे हैं वो, तो मुझे हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती थी. और वो हेल्प मैंने कहां से मिली? मुझे गॉड से. केवल गॉड दे सकते थे मुझे वो हेल्प, और कोई नहीं दे सकता था. So I made true estimate of my own ability, then raised it to 50% and put myself in God's hands. What a beautiful thing. This is the concept which I have followed from him. I always tell you that there is always a comfort zone. So this is a comfort zone. Everyone feels happy in this, that I should be doing all the work which is not difficult for me. Everyone wants it. But outside it lies a stress zone. So if you extend yourself, your efforts in this zone, you have to work very hard. But only when you work hard, you will achieve success. So that's what he was saying. I made true estimate of my own ability, that is the zone of comfort he found, then raised it 50%. So he raised, suppose this was the total thing, he raised it by 50%. He said, more than this I cannot do. And then left everything in the God's hands. So I always tell you that 30% is your hard work and 70% is your luck. That is God's help. But for achieving that 70% help of the God, you have to give everything of yours for becoming expert in 30%. वो है सबसे जरूरी. देन उन्होंने कहा कि जो सोच है हमारी, उसको हमें एक कैपिटल असेट के रूप में यूज करना चाहिए. जो हमारे पास कैपिटल असेट्स होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं होता ज्यादा. आज मेरा मकान है, मेरे पास मकान है, मैं उसमें रह रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं. तो मुझे ऐसे कैपिटल असेट के रूप में मेरा जो थॉट प्रोसेस है, मेरी जो थिंकिंग है, मुझे उसको कैपिटल असेट के रूप में यूज करना चाहिए, चाहे कितने ही चढ़ाव और उतराव मेरी लाइफ में आ जाए. And the last but not the least, this is very, very important for you. She was asking me, Ruchika was asking me, yes, Ruchika. Oh, yes. She was asking me from where did he get all these high levels standards and high level thought processes. Now, this is the last quote which gives everything about him. Right? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में जो ऑनेस्टी है और सेल्फ डिसिप्लिन है, जो मैंने अनुशासन, मेरा इतना बड़ा मैं अनुशासित जिंदगी बिताता हूं, मेरी ऑनेस्टी और मेरा अनुशासन, ये मैंने अपने फादर से पाया है. जो हम सीखते हैं ना कि मॉरल्स कहाँ से आते हैं, मॉरल्स धीरे 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 बचपन में इनकलकेट होते जाते हैं, हमारे अंदर आते जाते हैं, वो हमारे मॉरल्स बन जाते हैं बड़े होकर.
तो उन्होंने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से पाया, और अपनी माँ से। यहाँ से एथिकल जर्नी शुरू हुई उनकी। आप सोचिए कितनी स्ट्रांग जर्नी शुरू हुई। और उन्होंने कहा अपनी माँ से मैंने पाया गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, कि मेरे अंदर कैसे काइंडनेस आई, और कैसे मेरे को लगता है कि मैं सबके लिए अच्छा सोचूं। तो ये मेरी माँ ऐसा करती थी, और मुझे अपनी मदर ने ये मोटिवेशन दिया लाइफ में, मुझे ये इनकलकेट किया कि मुझे ये दो क्वालिटी जरूर अपने पास रखनी है, कि सबके साथ में अच्छा व्यवहार करूं, अच्छा वर्ताव करूं, और सबके साथ काइंड बिहेवियर करूं। तो ये जो बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स थे, जो बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स थे, वो उन्होंने अपने माता और पिता से प्राप्त किए। और ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। जो हम पढ़ाते हैं ना एथिक्स में, पूरे हर टीचर बताने की कोशिश करता रहता है मॉरल्स आर गुड और बैड, एंड राइट और रॉन्ग। आई डोंट केयर अबाउट दैट। द बेसिक थिंग इज योर पेरेंट्स नो द बेस्ट थिंग फॉर यू, दैट इज वॉट यू हैव टू लर्न, and that will always be supporting you in your life. That's what Abdul Kalam ji used to say. Okay, now just see, let's know about something about him. You know, post presidency is very important, very important thing. जब उनका प्रेसिडेंसी का कार्य पूरा समाप्त हो गया, तो he became professor. Which president will do it? Once you are not president, you get a palatial house, all facilities, everything is there. You do your studies, read books, and enjoy. बट उन्होंने क्या किया, जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब प्रोफेसर के रूप में काम करूंगा। और ये टीचिंग के साथ उनका जो जुड़ाव था, वो जिंदगी के आखिरी क्षण तक रहा। और आपको उनके जो एथिक्स की जो बेस है ना, मैं अब जो बताने जा रहा हूं उससे पता चलेगा, आपको बहुत कुछ सीखना है उनसे। और एग्जाम में, अगर आपको पता है, पिछली बार जब एग्जाम हो रहा था, उसके 7 दिन पहले जब मैं अब्दुल कलाम जी को पढ़ा रहा था बच्चों को, तो लोग कह रहे साहब अब्दुल कलाम जी कैसे एग्जाम में आएंगे, क्या होगा। मैंने कहा मैं आपको उनका एक पूरा सिस्टम बताऊंगा, जो मैंने पढ़ाया था, मैं आपको दिखाऊंगा वाला। वो वैसा का वैसा ही एग्जाम में आ गया। उस समय 4 मेजर क्वेश्चंस उसी समय से आए थे, जो हमने पिछले 5-7 दिन में पढ़े थे उस समय। वो अनयूजुअल थे, लोग कहते थे क्या इन क्वेश्चंस में तो आने नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब वो एक लेक्चर दे रहे थे आसाम में, आसाम में नहीं, IIM शिलोंग में, जब IIM शिलोंग में वो एक्शन लेक्चर दे रहे थे, और लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ, कि कैसे हम अपने प्लेनेट अर्थ को ज्यादा लिवेबल बनाएं, कैसे उसमें हम आसानी से रह सकें, हमें दिक्कतें न आए, कैसे हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। उनको वहां सुपर हार्ट अटैक हुआ 27/7/2015 को, यानी फेल डाउन। लेकिन उनके साथ एक व्यक्ति था जो हमेशा उनके साथ रहता था, पूरी जिंदगी उनके साथ रहा। जब वो ही वॉज डाइंग, तब उन्होंने पता है क्या कहा, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल, बिकॉज वो घबरा गया आदमी कि क्या हुआ सर को। और उन्होंने उस समय मुस्कुराते उससे कहा, ए फनी गाय, आर यू डूइंग वेल, ठीक ठाक तो हो। एंड ही कोलैप्स्ड। Think of the greatness of this man. This is what actual application in life, the real life, about ethical principles is. His life till the end was a message, an example to the world to ponder upon, the cherish for times to come. जो भी उन्होंने सिखाया, उसको अगर हम अपने मन में उतारें, तो आप ये मान के चल लीजिए कि जिंदगी भर उन विचारों से आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता रहेगा। ही वॉज अ वेरी करेजियस मैन। देखें आगे, उन्होंने हमेशा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया,
इसको लोगों ने सबने बाद में स्वीकार किया, सब लोगों ने बाद में उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। और वो था डेमोग्राफिक डिविडेंड। उन्होंने कहा हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम कैसे इसको अपना कैपिटल, हम कैसे उसको एक अच्छा हमारा उपयोग की एक वस्तु बनाएं। और उन्होंने इसका नाम दिया डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी कि जो जनता है हमारे पास, जो जनसंख्या है इतनी बड़ी, उसको हम कैसे अपने लिए फायदेमंद बनाएं। उस समय तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि पॉपुलेशन भी डिविडेंड के रूप में यूज की जा सकती है। और इसमें उनका कहना था कि जो हमारा यूथ है, उसको हमें अपनी पावर बनाना है नेशन की। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसको आप इस बार के एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा, इस बार भी क्वेश्चन ऊपर आने वाला है, तो क्वेश्चन तीन पे आएगा, या तो अब्दुल कलाम जी पर आएगा, या गुरु नानक जी पर आएगा, या गांधी जी पर आएगा। इन तीन में से एक पर ही आना है क्वेश्चन इस बार, ये आप याद रखिएगा। तो उन्होंने एक बहुत ही अलग तरह का मूवमेंट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जस्ट इमेजिन, ही लॉन्च दिस प्रोग्राम। मैं क्या दे सकता हूं इस संसार में, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं व्हाट कैन आई गिव, मेरे द्वारा क्या दिया जा सकता है समाज को। यस, ऑफ कोर्स अंबेडकर जी इज माय हार्ट, कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं। एंड ही सेड, इस चीज को लेकर कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं, हमें लड़ाई लड़नी है करप्शन के अगेंस्ट, और यूथ के अंदर इन अच्छी जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, जिनको हम कहते हैं वर्चूज, उनको उनके अंदर इनकलकेट करना है, उनके अंदर उनको समाना है। क्या बोले वो? आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट because corruption and moral turpitude are the evils needed to be defeated by the goodness of youth। कितनी स्ट्रांग बात कह रहे हैं यहाँ, सिंपल वो प्रिंसिपल कह रहे हैं जो हम बार बार थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। क्या कहा उन्होंने कि वर्च्यूज को, कि आपके पास वर्च्यूज हैं, सो दिस इज, ही सेड, इज द गुडनेस ऑफ यूथ। जो जोश होता है एक यंग पर्सन में, जो आइडियलिज्म होता है, उसको हमें यूज करना है। यानी कि ये तो हुई हमारे वर्च्यू, हम लोगों ने सीखा था, ये सीख रखा है फॉर्मूला बार बार। और इस वर्च्यू के पीछे वाइसेस पड़ी रहती हैं। एक वाइस ऑफ एक्सेस होती है, यानी कि बहुत ज्यादा उस गुण को एक्सेस में ले जाता है आदमी, तो वो एक दुर्गुण बन जाता है। वाइस मीन्स दुर्गुण, वर्च्यू मीन्स गुण। तो दो तरह की वॉइस होती है, एक वॉइस ऑफ एक्सेस और एक होती है वॉइस ऑफ डेफिशिएंसी। अब अगर एक यूथ को सही रास्ते पे ले जाएं और सही रास्ते पे चले, तो कुछ भी कर सकता है इस संसार में। जितने बड़े मूवमेंट्स हुए हैं सब यूथ के सपोर्ट से हो पाए। ये भगत सिंह जी थे एक्चुअली, जिन्होंने थरथरा दिया था अंग्रेजों को। राम प्रसाद बिस्मिली थे, जिनसे डर गई कौम, कि अरे ये क्या, इतने यंग यंग बच्चे अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए देश के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आप इस मूवमेंट में व्हाट कैन आई गिव में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप इस समाज में इस समय मानसिक बीमारियां, जो मानसिकता है वो बहुत गिर चुकी है, मानसिकता जो बहुत नीचे जा चुकी है। और दूसरा, हमारी जिंदगी में बहुत इविल्स आ गए हैं, शराब, सिगरेट, और भी जितनी गंदगियां हो सकती है हमारे यहाँ आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, एक यूथ की जो पावर है, वो यूथ अपनी इस पावर को यूज करके इन वर्चूज को दूर फेंके, उससे पहले कि ये वाइसेस हमें अटैक करें वर्चूज को, इनको यूथ निकाल के फेंक सकता है, कि उसमें इतनी शक्ति होती है। ये उनका बहुत बड़ा फॉर्मूला था, और मैं ये बार बार पढ़ाता हूँ अपने क्लास में।
तो उन्होंने फिर कहा कि मैं यूथ में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। अब मुझे पता है कि यंग पीपल में वो दिमाग है, वो एक्टिव जनरेशन ऑफ आइडियाज है जो कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकती हैं। ये वाइसेस को दूर कैसे किया जाए, उनके द्वारा, खुद के द्वारा निकाला जा सकता है। कि जो एक फायर होती है ना एक यंग आदमी के ब्रेन में, उस फायर से संसार को जलाया भी जा सकता है, और उस फायर से तपाकर किसी व्यक्ति को लोहे से सोना भी बनाया जा सकता है। ये इनकी मूल भावना थी। आगे चले। अब देखिए कितना एथिकल लाइफ उनकी रही है। अब क्यों उनके लिए एथिक्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट थे, उन्होंने बताया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि वी नीड टू हैव नेशनल एथिक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वी नीड टू हैव नेशनल एथिक्स, जिससे कि हम सस्टेन विकास कर सकें और शांति प्राप्त कर सकें। तो देश में शांति और लगातार बढ़ती हुई ग्रोथ, इसको अचीव करने के लिए हमें आवश्यकता है नेशनल एथिक्स की। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नेशनल एथिक्स का। क्योंकि एथिक्स में उससे पहले हम सोचते थे सोसाइटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मॉरल से एथिक्स बनते हैं, फिर वर्च्यू से एथिक्स बनते हैं, वो एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इसेट ओके। बट हमारे को नेशनल एथिक्स भी रखने पड़ेंगे अपने पास अगर हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नेशन हैज टू हैव एथिक्स इन ऑल इट्स टास्क। अगर हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम उसमें नैतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं, तो आप ये मान के चल लीजिए कि हम इकोनॉमिकली कोई गलती कर ही नहीं सकते। कब करप्शन होते हैं इतने बड़े बड़े, जबकि हम सोचने लग जाते हैं कि हमें उसमें से क्या फायदा मिलने वाला है, तब वो करप्शन की लाइन शुरू हो जाती है। और जैसा कि कल हम एक केस स्टडी में पढ़ रहे थे, कुछ बच्चों ने जिन्होंने ज्वाइन किया था मेरा यूट्यूब चैनल जो अन अकेडमी पर है, अन अकेडमी की क्लास, तो मैंने उनको बताया था कि उस एक व्यक्ति ने 5 रुपए के अखबार के लिए 10 रुपए लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो उनका कहना है कि अगर हम नेशनल एथिक्स प्राप्त करना चाहते हैं, नेशन के लिए एथिक्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो सोसाइटी को एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, पूरी सोसाइटी को। सो फर्स्ट इज नेशनल एथिक्स, तो इसको हम ये लिखते जाते हैं, नेशनल एथिक्स। ये किससे आएंगे? सोसाइटल एथिक्स, सोसाइटी के एथिक्स से, जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर आगे बोले कि इफ सोसाइटी हैज टू हैव एथिक एंड वैल्यू सिस्टम, अगर सोसाइटी को, सोसाइटी कैसे रखे एथिकल सिस्टम, सोसाइटी के जो एथिक्स बनते हैं वो इंडिविजुअल मॉरल्स और इंडिविजुअल वर्चू से तो बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम समाज में वाकई में एथिकल वैल्यूज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जो परिवार है, परिवार को एथिकल सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। हर परिवार को अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों में ये इनकलकेट करना चाहिए, ये भावना भरनी चाहिए कि किस प्रकार हमें मॉरल लाइफ और एथिकल लाइफ बितानी है। तभी तो सोसाइटी के अंदर अच्छे स्टैंडर्ड बनेंगे, तभी तो हम सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स की पालना कर पाएंगे। तो वो बोले कि अगर आप सोसाइटी के एथिक्स प्राप्त करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो सबसे पहले आवश्यकता है फैमिली एथिक्स की। और फैमिली एथिक्स कैसे आएंगे? फैमिली एज ए होल कैसे एथिकल फैमिली बनेगी, जबकि उसके अंदर इंडिविजुअल जो हैं, माँ बाप, बेटे बेटी, भाई बहन जो भी हैं, सो जो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, ये वो इन स्टैंडर्ड्स को आपके अंदर इनकलकेट करेंगे, पेरेंट्स।
पेरेंट्स ही बेसिकली मॉरल्स हमारे अंदर डेवलप करते हैं। और फिर वो बोले कि जो पेरेंट्स के जो एथिक्स है ना, पेरेंट्स में जो एथिक्स हैं वो आते हैं ग्रेट लर्निंग से। वो खूब कितना लर्न कर रहे हैं, कितना वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, कितनी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं, और किस प्रकार अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहे हैं। क्लीन का मतलब यहाँ पे केवल उस सफाई से नहीं है, क्लीन मीन्स क्लीन फ्रॉम वाइसेस, अर्थात अगर हम इंडिविजुअल एथिक्स प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हर व्यक्ति हम चाहते हैं कि एथिकल हो, तो ये साइकिल है जो आपको एग्जाम में याद रखनी है। कैसे कि अगर हम नेशनल एथिक्स प्राप्त करने चाहते हैं तो क्या साइकिल होगी? सबसे पहले इंडिविजुअल एथिकल होना चाहिए, उसके परिवार में पेरेंट्स उसके एथिकल प्रिंसिपल्स वाले होने चाहिए, और जब पेरेंट्स एथिकल होंगे तो फैमिली एथिकल होगी, और फैमिली एथिकल होगी तो सोसाइटी एथिकल होगी, और जब सोसाइटी एथिकल होगी तब हम नेशनल एथिक्स को प्राप्त कर पाएंगे। ये एक प्रेसिडेंट कह रहे हैं, आप जस्ट सोचिए, इतने बड़े विचारक। जो पूरा एथिक्स का पेपर है ना हमारा, तो सारा का सारा इस लेक्चर में कवर हो जाता है वैसे। यू आर सो ग्रेट। फिर उन्होंने कहा कि जो हम अपने जिंदगी में लड़ाई लड़ते हैं ना, जो अपनी हम जिंदगी में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो लड़ाई हमारे को हमारी डिग्निटी दे रही है, हमारी इज्जत, हमारी खुद का अभिमान, स्वाभिमान, और जो हमें सिखा रही है कि हमें दूसरों को माफ करना आना चाहिए, राइट। तो हम जो अपनी जिंदगी में अब लड़ रहे होते हैं, समय समय पर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से हमको लड़ना पड़ रहा है, वो लड़ाई अगर हमें हमारा स्वाभिमान सिखाती है, फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ करना सिखाती है, क्योंकि जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग अत्याचार कर रहे होते हैं आप पे। उन अत्याचारों का अगर आप बदला लेने आप बैठ जाएंगे तो आप जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फॉरगिव देम और अपने रास्ते पे चलो आगे। हम्म। हमें तो वो विजन डेवलप करना है जो हमारे अल्टीमेट टारगेट है। जैसे आज हम बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इन सब बच्चों के लिए टारगेट क्या होना है कि हमें तो सिविल सर्विसेज के अंदर अपना टारगेट प्राप्त करना है। उस विजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या मैकेनिज्म अपनाना है, कि क्या हम सही रास्ते को चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। ये नहीं कि बहुत सारे अब वीडियो रोज आ रहे हैं, 100 दिन में आईएएस पास करें, 50 दिन में आईएएस पास करें, वो सब बेकार है। एक्चुअली ये तो खुद आप हैं जो आसानी से इस यात्रा को पूरी कर सकते हैं। ये सब झूठ बोलते हैं लोग, तो आप ये कर लो, और आप 8 घंटे ये पढ़ लो, 12 घंटे ये कर दो, और फिर आप ये कर लो। और अरे भाई, तुमने अपनी लाइफ में जो आज सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, ये पढ़ाकर इस तरह की चीजों की, आपको कैसे पता ये सच है, ये सही है? क्या ऑथेंटिसिटी है उन चीजों की जो आप बता रहे हैं बच्चों को आज? ऐसे तो मैं भी एक आइडियलिस्टिक प्लान बना के बता सकता हूँ आपको। टॉपर्स बताते ही है ना झूठ मूठ का एक प्लान, स्ट्रेटेजी टू अचीव सक्सेस। अरे तो मैं पढ़ाऊंगा ना हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी बता रहा है, ये कोई स्ट्रेटेजी है? सिंपल, एवरीथिंग शुड बी वेरी सिंपल इन योर लाइफ, वेरी वेरी सिंपल, राइट। उन्होंने कहा कि मदर मदर सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ बताती है, वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ बताती है, जिससे ही हम अपनी डिजायर्ड प्रोग्रेस को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा कि एथिक्स थ्रू वर्च्यूज इज वेरी डिफिकल्ट सिस्टम, बट हाउ सिंपली ही डिड इट, जस्ट अंडरस्टैंड। Otherwise we know, this the cycle, which diagram which we know about these three things is, again I will draw it here, that it is individual, ये individual है, और ये हमारा समाज है। हम ये कहते हैं कि हर इंडिविजुअल के मॉरल्स उसके पेरेंट्स, उसके समाज में जब वो बचपन से लेकर ऊपर बड़ा हो रहा है, वो मॉरल्स हैं।
दूसरा, वो डेवलप करता है गुणों को, सद्गुणों को, उन्हें हम कहते हैं वर्चूज। और हम समय के साथ देखते जाते हैं कि कौन से मॉरल्स और कौन से वर्चूज सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे सिद्ध हो रहे हैं। 50 साल, 100 साल, 150 साल उसको समाज एग्जामिन करता रहता है। ये डायग्राम एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हैं, करना चाहिए। और जब वो बहुत सालों तक ये देख लिया जाता है समाज के द्वारा कि ये इस आदमी ने मॉरल्स ये वाले यूज किए भाई, ये बहुत ही सही रिजल्ट निकला, समाज को फायदा हुआ, और ये आदमी ये गुण रख रहा है, तो देखो कितना अच्छा जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है। ओके, तो वो एक सोसाइटी के स्टैंडर्ड बन जाते हैं। और इन सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को हम कहते हैं एथिक्स। आप देखिए जरा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। हमने कहा कि भाई वर्च्यूज और मॉरल्स एथिक्स बनाते हैं, तो ही सेड दिस थिंग सो एम्फेटिकली, जो हम लोग आपको डायग्राम में बार बार आपको सिखाता रहता हूं। उन्होंने कितनी स्ट्रांगली इस बात को कहा। उन्होंने कहा एथिक्स थ्रू वर्च्यूज। उन्होंने कहा कि जो वर्च्यूज है ना, जो हमारे गुण हम अपने माता पिता से सीख रहे हैं, जो अपने आसपास के लोगों से सीख रहे हैं अपने लाइफ में, ये वर्च्यूज ही एथिक्स को जन्म देते हैं। तो ही सेड कि जो इंडिविजुअल करेक्टर्स एथिक्स होते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड, दूसरे के हमारे लिए कुछ अच्छा किया तो हम उसको धन्यवाद दें, मन से धन्यवाद दें। करेज, सेल्फ डिसिप्लिन, हम विश्वसनीय हों, हम दूसरे के प्रति काइंड हों, दूसरे की देखभाल करें, और हमारी सिंसियरिटी हो। उन्होंने कहा यह है इंडिविजुअल करेक्टर वर्च्यूज, जो कि एथिक्स बन जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति समाज में अगर हम पर विश्वास कर रहा है तो हम उसके विश्वास को ना तोड़ें, ये एक बहुत बड़ा वर्च्यू है। हम अगर ये जानते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स जब हमारे एजेड हो जाएंगे तो उनकी हमें सेवा करनी है, तो ये बहुत बड़ा मॉरल वैल्यू है जो हमारे अंदर है। राइट। तो उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल करेक्टर्स एथिक्स हैं, वो ये हैं जो कि एक व्यक्ति के करेक्टर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। इससे इंडिविजुअल का करेक्टर बनता है। और इसका कंट्रास्ट उन्होंने किया वर्क एथिक्स से। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बच्चे। तो सेकंड कंसेप्ट जो उन्होंने दिया वो था वर्क एथिक्स का। उन्होंने कहा कि जो वर्क एथिक्स हैं, जो हम अपने जहां हम काम कर रहे हैं, जहां हमारी सर्विस है, जहां हमारी नौकरी है, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। जब आप सिविल सर्विस में आएंगे तो ये वर्क एथिक्स ना भूलें कम से कम। उन्होंने कहा लेकिन ये वर्क वर्क एथिक्स कैसे आएंगे हमारे पास? जब हम सद्गुणों को सीखेंगे, सद्गुणों को हम उपयोग में लेंगे, सद्गुणों को हर काम जो हम कर रहे हैं उसके अंदर अप्लाई करेंगे। नो बेटा, इट इज टुडेज सेशन। So work ethics can be nurtured by practicing virtues like honesty. तो उन्होंने बहुत सारे जो वर्च्यूज होते हैं ना, जो बहुत सारे गुण, उनमें से दो, उन गुणों को दो चीजों में डिवाइड कर दिया। एक तो वो गुण जो आपके इंडिविजुअल करेक्टर को बना रहे हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छे उपयोगी हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं कि वर्क एथिक्स ये हम सीख सकते हैं ऑनेस्टी से, क्रिएटिविटी से, ट्रस्टवर्दीनेस से, अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनके कार्य की प्रशंसा करने से, और जो हमारा टास्क हमको दिया गया है उसको हम बहुत क्षमता से, अपनी पूरी क्षमता लगाकर पूर्ण करें। दूसरे लोगों के प्रति एम्पैथी रखें, यानी कि दूसरों की समस्याओं को अपने आप को उनके स्थान पर रखकर समझने की कोशिश करें। सहयोग की भावना सीखें, और हमें टॉलरेंस हो, यानी कि गुस्सा ना करें। तो उन्होंने पूरे जो वर्च्यूज थे, जो भी जितने पूरे वर्च्यूज जो सीखे गए, सिखाए गए हैं अरिस्टोटल के जमाने से, उनको दो हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने कहा समाज में हमें अगर अपना खुद का करेक्टर, खुद को एस्टेब्लिश करना है, अच्छी तरह से लाइफ में सक्सेस प्राप्त करनी है,
तो उसके अंदर हमें ग्रेटिट्यूड, करेज, सेल्फ डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी, काइंडनेस, केयरिंग एंड सिंसियरिटी, ये वाले वर्च्यूज यानी कि सद्गुण हमें अपनाने पड़ेंगे। और हम अपने कार्य में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हम देखा होगा सारे अफसर जो आईएएस रिजल्ट जाते हैं वो सब सक्सेसफुल थोड़ी होते हैं। उन्होंने भी तो इतना कठिन कंपटीशन पास किया है। वैसे कठिन नहीं होता कंपटीशन, सॉरी गलत यूज कर लिया मैंने। उन्होंने भी कंपटीशन पास किया है। फर्क उनमें ये होता है कि वो खुद के करेक्टर वाले जो एथिक्स हैं उनकी पालना करते हैं, और उन सद्गुणों को जो कि वर्क प्लेस पे चाहिए उनको अपने जीवन में उतारते हैं। और तीसरा, जब वो प्रोफेशनल एथिक्स की बात करते हैं, तो हमने जो पेपर पढ़ा था ना, जो जो हमने चैप्टर पढ़ा था एथिक्स पे, आपको कितना आश्चर्य हो रहा होगा कि ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी सरलता से अपने जीवन में उतार रखे थे। इज ए बिग कंपटीशन बट नॉट ए डिफिकल्ट कंपटीशन बेटे। ये बेटा एथिक्स की क्लास चल रही है जिसमें हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, अब्दुल कलाम जी ने, कि प्रोफेशनल एथिक्स कैन बी इनकलकेटेड थ्रू सेल्फ रेगुलेशन। अगर आज मैं डॉक्टर हूं, आज मैं सीए हूं, आज मैं वकील हूं, तो मुझे अपने आप को रेगुलेट करना आना चाहिए। ये नहीं कि मैं झूठ मूठ अपने पास, मेरे पास कोई आया आदमी आया कि अरे भैया किस तरह से मेरे पास फंसे तो सही, इसका केस मुझे लड़ने के लिए मुझे अधिकृत तो करे। उसको आप झूठे सपने दिखा रहे हैं, अरे भाई तुम ही जीतोगे केस को। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें, जब हम इस पोजीशन में बैठे हैं सिविल सर्वेंट, उनका ये भी कहना था, जब आपसे, क्योंकि खुद भी तो वो सर्विस पर रहे पहले, उन्होंने कहा अगर हम इम्पार्शियल हैं लाइफ में एज सिविल सर्वेंट, तो आप ये मान लीजिए आपके आधे से ज्यादा टारगेट आप स्वयं ही अचीव कर लेंगे, बिना किसी कठिनाई के अचीव कर लेंगे। ओके। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया, जो मैंने पहले आपको रेफर किया था ना, कि उसके आगे वाली कड़ी है। उन्होंने कहा कि करप्शन हमारे देश के अंदर हर लाइफ में, लाइफ के हर स्टेज पे करप्शन घुस चुका है, चाहे वो छोटा सा लेवल हो और चाहे वो हजारों करोड़ रुपए का करप्शन। और उन्होंने कहा कि सबसे हृदय विदारक चीज तो ये है कि समय के साथ ये कम नहीं हुआ, लगातार ये बढ़ता जा रहा है, और लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है। आज आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं और स्कूटी पे आप जा रहे हैं, तो और किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, उस समय शायद आपसे कुछ छोटी मोटी भूल हो गई हो, तो फटाक से कहेगा लाइए 500 रुपये निकालिए। आप कहोगे भाई 500 रुपये मुझसे कहाँ से है, मेरे पास स्टूडेंट हूँ, मुझे पास 500 कहाँ आएंगे। तो अल्टीमेटली सौदा तय हो जाएगा 100 रुपये पर। यानी वो फर्स्ट पॉइंट है, जबकि आप करप्शन फेस कर रहे हैं और आप खुद को भी करप्शन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक लाइफ का एक फैक्ट मान लिया था, अरे भाई देने ही पड़ेंगे 100 रुपये, तो इसको देने ही है। समझे आप? यस बेटा, व्हाट यू आर सेइंग, डॉक्टर कलाम said the full power of banyan tree is equal to the power in the seeds of the tree, nurturing. Yes. And Sachin says, जब वर्क को uh, साध्य ही गलत हो, तो उसके संसाधन कैसे उचित हो सकते हैं। यस, यही तो पॉइंट है, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि द सोसाइटी कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन इट अपहोल्ड्स, नर्चर्स एंड एनरिचेस। यानी कि जब हम सोसाइटी के अंदर वैल्यू सिस्टम को, जो हमने सीखा, जो एथिकल प्रिंसिपल्स के, जो कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के हैं, उनको हम सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, तभी इस देश के अंदर कोई प्रोग्रेस होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जो डिसऑनेस्टी है और जो करप्शन है, आपको पता है ना दोनों में अंतर क्या है? कोई बता सकता है डिसऑनेस्टी और करप्शन में क्या अंतर है? व्हाट इज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी? कोई बच्चा मुझे बताए इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसऑनेस्टी और करप्शन।
लोग ज्यादातर इनको एक ही चीज मान के चलते हैं, लेकिन एक फर्क है। क्या फर्क है इन दोनों में? यस बच्चे, कोई बताइए मेरे को। Honesty is accepting the actions done by us. Yes. रुचिका इज वेरी राइट। रुचिका ने, आप सब लोग सुन लीजिए इस बात को अच्छे तरह से। रुचिका ने ये कहा और बिल्कुल सही कहा कि ऑनेस्टी का मतलब तो ये है कि जो हमने किया उसको हम सच्चे रूप से स्वीकार कर लें। यह है ऑनेस्टी। क्या हम अपने प्रति ऑनेस्ट हैं, समाज के प्रति ऑनेस्ट हैं, यानी कि जो हमने, यानी कि मुझसे कुछ गलती हो गई, मान लीजिए मैं ऑफिस में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई कहीं टेंडर में, इसमें जानबूझ के नहीं, मिस्टेक हो गई, सबसे होती है मिस्टेक। अब मैंने उस स्टेप, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने सीनियर से जाके कहूं ये मिस्टेक तो देखो सर, ये मेरे सबॉर्डिनेट बहुत ही बेकार है, इन लोगों ने देखिए मुझे क्या फंसा दिया सर, कितना गलत काम किया इन लोगों ने। और दूसरा ये कि सर ये गलती मुझसे हुई है, मेरे इसके लिए और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं, मैं हूं रेस्पॉन्सिबल। दैट इज ऑनेस्टी। और जहां हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं वो करप्शन से संबंधित होती है। यस, अवे फ्रॉम ब्राइब्स एक्सेट्रा, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, दोनों चीज आपने बहुत अच्छी बताई हैं चल। और तो ही सेड कि डिसऑनेस्टी और करप्शन कैंसर की तरह से हैं। डिसऑनेस्टी एंड करप्शन कैंसर की तरह से हैं, और जो किसी भी व्यक्ति की लाइफ को और सोसाइटी को खोखला करते जाते हैं। मुझे नहीं लगता, मैंने कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जो राजनीति में हो और इतने बड़े एथिकल प्रिंसिपल्स को ना केवल प्रतिपादित कर रहे हो लेकिन अपनी जिंदगी में उतार भी रहे हो। जब वो इस संसार से गए थे उनके पास कुछ था ही नहीं, कुछ कपड़ों के अलावा, नथिंग, नो प्रॉपर्टी, नथिंग, only few suitcases of clothes and a large trunk of good books. Yes, व्यक्तिगत। तो डिसऑनेस्टी बेसिकली, यू आर आल्सो राइट सचिन, ये खुद की है, खुद आप कितने सच्चे हो अपने आप के प्रति, और जब सच्चे हो तो नेचुरली आप करप्शन भी नहीं करोगे। उन्होंने फिर ये कहा कि इंडिया वांट्स यंग पीपल ऑफ एथिक्स, यूथ ऑफ एथिक्स। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो बहुत बार एग्जाम में आता है। उन्होंने कहा कि आज भारत को जरूरत है जो यंग लोग हैं वो अपने आप को एक एथिकल लाइफ के प्रति डेडिकेट कर दें। एथिकल लाइफ को ये नहीं कि आप अच्छी नौकरी ना करो, अच्छा नहीं, सब कुछ करो, लेकिन उन सब में आप एथिकल लाइफ बिताओ। उन्होंने कहा क्योंकि यूथ आइडियलिस्टिक होता है, इसलिए मैं यूथ से अपेक्षा कर सकता हूं कि वो समाज में एथिक्स को एस्टेब्लिश करेंगे। उन्होंने कहा जैसे ही यूथ ये प्रयास करेगा तो नेचुरली उनके घरों में भी एक अच्छा चरित्र, एक अच्छा माहौल स्वतः ही पैदा हो जाएगा। और उनका सबसे बड़ा जो मूल मंत्र था ना, उन्होंने कहा कि हमें करप्शन फ्री तो करना है अपने समाज को, लेकिन ये अच्छी तरह समझ लेना है कि ये जो सबसे बड़ी वाइस है, करप्शन इज वेरी बिग वाइस, दुर्गुण, जो हम एथिक्स में इसको वाइस कहते हैं, ये सबसे पहले हमें अपने घर पर दूर करना है उसको, करप्शन को। कैसे दूर करना है? बहुत बड़ी बात। अगर बच्चे ये डिसाइड कर लें, अगर ये बच्चे डिसाइड कर लें कि उनका परिवार करप्शन फ्री होगा, जिसमें उनके पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, इंडिया बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा इस गंदे माहौल से। उन्होंने कहा कि द बॉन्ड ऑफ लव यू हैव विद योर फादर, उस बॉन्ड को यूज करो, और फादर के द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है उसका विरोध करो घर में। ऐसा नहीं कि लड़ने बैठ जाओ, बस उसको अस्वीकार करते जाओ। और उनका जो संदेश था वो ये था कि हर बच्चे को अपने घर में करप्शन फ्री ब्रिगेड बना लेनी चाहिए। जब बच्चा ही इस बात को लड़ने लग जाएगा कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, पापा जो आप सामान ला सकते हैं वही लेके आओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा चीजों की, और ये जो आप लेके आ रहे हैं ना, ये फलने वाला नहीं है। जिस दिन ये यूथ इस
करप्शन फ्री ब्रिगेड के रूप में काम करने लग जाएगा, तो आप ये मान लीजिए निश्चित रूप से करप्शन इस देश से दूर हो जाएगा। ये उनका कहना था। उनका ये भी कहना था कि चाहे वो बेटी हो और चाहे बेटा, उनको बोल्ड होना पड़ेगा, जिससे वो अपने पिता को फोर्स कर सकें कि फादर, यू डोंट हैव टू एंटर इन फॉर करप्शन। सो जो उन्होंने संदेश दिया वो ये था कि हम सबसे पहले अपने घर, जो कि उन्होंने पहले प्रिंसिपल दिया था, जो मैंने आपको यहां बताया था, इसमें इंडिविजुअल, पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी एंड देन नेशनल एथिक्स। गुड गुड आंचल, वेरी गुड। नाउ he says, what can I give basically to the society? Very important thing, very very important thing. कलाम ऑलवेज एनकरेज पीपल। सबको कहते थे वो। मैं जितनी बार मिलने गया, मुझे पहचानने लग गए थे वो। मैं जितनी बार भी उनसे मिलने जाता था, वो हमेशा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताते थे लाइफ की। होता वो एक या दो सेंटेंस में था जो बताना होता था, लेकिन राष्ट्रपति जी से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपसे घंटों बातें कर रहे होंगे। लेकिन जो उनके एक दो सेंटेंस निकलते थे ना, धीरे से नीचे से लगते थे, और फिर जब ऊपर उठा के वो बोलते थे, तो आप समझ लीजिए वो स्वर्णिम अक्षर होते थे, जो आज भी मेरे पूरे हृदय पे गुदे हुए हैं। और इसी कारण मैंने अपनी सर्विस में बहुत ही स्ट्रांगली नौकरी करी है। सब डरते थे मेरे से, मैं डरा के रखता था सबको। और जब भी पॉसिबल था कि जब आप पे कोई उंगली ना उठा सके। तंग करेंगे लोग, नेचुरली आपको तंग करेंगे जब आप ऐसा कर रहे होंगे। करने दीजिए ना, अल्टीमेटली जीत तो आपकी होने वाली है। आपकी जो आईज में शाइन मिलेगी ना इस स्टेज में भी, वो इसलिए मिलेगी क्योंकि आप ऐसे एथिक्स की पालना कर रहे हो, तभी आपकी आईज में शाइन दिखेगी, नहीं तो नहीं। सो कलाम एनकरेज पीपल टू डू समथिंग गुड, चाहे कितनी ही छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन उसको हमेशा एक अच्छी चीज के रूप में करना चाहिए। इसका मतलब अच्छी चीज का करने का उनका क्या मतलब था? अच्छा, अच्छा मीन्स मॉरल, क्या अच्छा क्या बुरा। सो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ आप काम कर रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उसको एथिकल मैनर से करना चाहिए, एथिकल तरीके से करना चाहिए। और वही हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी करप्शन के अगेंस्ट। उनका कहना था एटीट्यूड अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे एथिक्स का। तो उनका कहना था कि चेंज ऑफ एटीट्यूड इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों का एटीट्यूड कैसे चेंज करें करप्शन के प्रति। क्यों आज ऐसा हो गया कि कोई व्यक्ति करप्शन से बहुत बड़ा घर बना लेता है, तो लोग जो कि ये नहीं कहते लोग कि करप्शन कर लिया, ऐसे लोग कहते हैं क्या शानदार घर बनाया है भाई। अरे शानदार घर बनाया है, उसने किन किन लोगों का खून चूस कर, किन लोगों से के साथ जो उनका अधिकार का पैसा है उसको छीन कर अपना घर बनाया, और आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। और एक पर्सन उसी सर्विस में एक छोटे मकान में रह रहा है, तो कह रहे थे क्या है साहब छोटे मकान में रहता है, बेकार आदमी है। एक मकान नहीं बना सका जिंदगी में अच्छा सा। अरे कलाम साहब को सोचिए, इनके ना केवल उनके पास ना तो कार थी ना स्कूटर था कभी, ना उनके पास कोई मकान था। सो ही सेड कि डिफरेंस क्या है, कि हम चेंज ऑफ एटीट्यूड कैसे कर सकते हैं। क्या सिद्धांत उन्होंने दिया एथिक्स का, बहुत बड़ा सिद्धांत, कि ये सोचना कि मैं समाज से मुझे क्या मिल सकता है, मैं क्या बन जाऊं, मैं क्या अचीव कर लूं। आज समाज की रिक्वायरमेंट है, मैं इसमें बिजनेस करता हूं, आई विल अर्न लॉट ऑफ मनी एज अनी इज डूइंग। कहां चैरिटी करते हैं वो, दूसरा विप्रो देखिए, अरबों रुपए की चैरिटी। आज अंबानी हॉस्पिटल में बॉम्बे में आप ले सकते हो कि एडमिशन को, अगर भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो, चांस ही नहीं है। लाखों लाखों रुपए का खर्चा वहां पर आएगा। लेकिन दूसरा एक बॉम्बे हॉस्पिटल है, वहां बिल्कुल हर चीज सस्ते में इलाज होता है, और वही एफिशिएंट होता है। टाटा कंसल्ट, टाटा हॉस्पिटल्स में जाइए, कैंसर हॉस्पिटल में बहुत ही रीजनेबल दरों पे आपका इलाज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं समाज से क्या प्राप्त कर सकता हूं, यानी कि हर अपॉर्चुनिटी लेके मैं उसको समाज को चूसने लग जाऊं।
हमें सोचना यह है कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं। ये 2017 में आया था कि मैं समाज से क्या ले सकता हूं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं समाज को क्या दे सकता हूं। और जैसे ही हमने ये सोचा, तो हम एक ग्रेट सिटीजन के रूप में अपने आप को इस समाज में ला रहे हैं। यस, यू आर राइट। अच्छा, एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी एंड किलिंग अदर्स। अब थोड़ी देर में देखिएगा टेली कम्युनिकेशन में एक ही कंपनी रह जाएगी, एंड फिर हमारे बिल आने शुरू हो जाएंगे, 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे। सो बेसिकली, व्हाट कैन आई गिव will make the society which is compassionate, environmentally conscious and care towards each other। तो उनका बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा जैसे ही हम ये सोचने लग जाएंगे और ये व्यवहार में लाएंगे कि हम मैं क्या कर सकता हूं समाज के लिए, तो उस समय हम एक दूसरे के प्रति दया की भावना भी जनरेट करेंगे। हम एनवायरमेंट के प्रति भी जागरूक होंगे और एक दूसरे का ध्यान रखना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखना भी समाज के लिए कुछ करना है। अगर आज एक गरीब व्यक्ति आपके ऑफिस में आ रहा है, सुबह आ गया वो आज आपके ऑफिस में, मुझे आज कलेक्टर साहब से अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और आप बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो, पॉलिटिशियन आ रहे हैं उनके ऊपर लगे हुए हो, कोई आ गया उनके नीचे छोड़ने जा रहे हो, कर रहे हैं, और शाम हो गए, शाम को वो कहते हैं उससे भाई मैं कल मिलूंगा तेरे से। अरे, ये कैसे हो सकता है? वो तो अपने एक दिन की वेज छोड़कर आया है। कहाँ वो रुकेगा, क्या करेगा? उसने बस में आने में पैसा लगाया है, इतनी दूर से चल के आया, फिर बस में जाने में पैसा लगाएगा, एक शिकायत भी तो बताना चाहता है आपको। आपको उसको एक शिकायत सुनने का मौका नहीं है। इसका मतलब आप में ये भावना है ही नहीं कि मैं क्या दे सकता हूं, व्हाट कैन आई गिव टू द सोसाइटी, डज नॉट एग्जिस्ट इन योर बीइंग इन दिस वर्ल्ड। मुझे याद है जब मैं एक बार गांव में गया, एक वृद्धा आंसू भरी थी, एक तरफ बैठी थी पीडीएस शॉप के सामने। मेरा ये सिद्धांत है, मैं जब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी था तो भी, जब भी मैं किसी गांव में जाता था तो मैं पैदल चलता था गांव की सड़कों पर, कि पैदल चल के आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। अदरवाइज आप गाड़ी में हैं तो लोग आपको उत्सुकता से देखेंगे लेकिन अपनी बात कोई नहीं बताएगा। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ अम्मा जी? तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो इस बार का अनाज ही नहीं दे रहा है, ना अनाज दे रहा है, ना गेहूं दे रहा है, ना शुगर दे रहा है। तो मैंने डीलर को बुलाया, इधर आओ, क्यों नहीं दे रहे इसको शुगर इसको। उसने मुझे फटाक से पॉस मशीन दिखाई, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है ना आजकल, पीडीएस शॉप पे एक मशीन होती है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है। उसने मुझे पॉस मशीन दिखाई। उस पॉस मशीन में बिल्कुल लिखा हुआ था कि इस महिला को इतना गेहूं और इतना शुगर दे चुका हूं। मैं तो पजल्ड हो गया। मैंने महिला से पूछा आप सच्ची बताओ अम्मा। जब मैंने कहा ना सच्ची बताओ अम्मा, तो उसके आंसू जो गीले हो रहे थे ना, वे टप टप करके भी नहीं लगे। मुझे समझ में आ गया कि शी इज राइट। दो टीयर्स जो थे गाल पे बह रहे थे ना, वो डायरेक्ट मेरे हार्ट में टच किए। और मैंने सारा स्टॉक चेक कराया, उसका पता चला कि उसके पास 160 बोरी एक्स्ट्रा थी गेहूं की उस दिन। और उसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, जिस पर आप अंगूठा लगाने जाएंगे उस मशीन पे, तो आपसे वो तीन चावल लगाए, मुझे अभी ठीक नहीं लगा, अभी जरा एक बार और ठीक लगाइए, आप और जरा ठीक लगाइए। तो अगर आप उस गरीब महिला के लिए कुछ कर सकते हैं, भूल जाइए कि आप उस समय कलेक्टर हैं, और कलेक्टर है तो यूज करिए अपनी पावर को, यूज करिए पावर को उस लेडी की हेल्प करने के लिए। मैंने सब कैंसिल कर दिया उस दिन के प्रोग्राम। मैंने एसडीओ को बुलाया, मैंने डीएसओ को बुलाया, मैंने कहा छापा लगाओ इसके पूरा। उस जब तक मेरे को चैन नहीं आया, जब तक मैंने उस दुकान को बंद नहीं करवा दिया, वो आज तक चालू नहीं हो सकी इस दुकान। नए आदमी को मिला फिर वो, और उस महिला का सारा अनाज जो वो कह रही थी, चाहे उसने हो सकता है उसने 4-5 किलो एक्स्ट्रा कह दिया, क्या फर्क पड़ता है 4-5 किलो, अगर किसी एक गरीब महिला ने जिसके पास खाने के लिए नहीं है उसने एक्स्ट्रा बता भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता क्या 5 किलो गेहूं उसको? दैट इज वॉट यू हैव टू लर्न। वॉट कैन आई गिव वॉज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, राइट? एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड विच आई वॉन्ट टू डू टूडे। उन्होंने ये कहा कि इंटीग्रिटी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसका क्या रिलेशन है?
जो मैं बता रहा था ना, आपको अंबानी जी के बारे में बात कर रहे थे। जब उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बोला, तो उससे पता चलता है कि उनका कितना बड़ा कमिटमेंट था एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए। बेटा, प्रॉब्लम यही है कि ऐसे जो आदमी होते हैं ना, वो कल जो मैंने केस स्टडी कराई थी उसके अंदर वो यही तो था कि वो आदमी इस बात के लिए भी तैयार नहीं था कि मैं 5 रुपए के अखबार के लिए 10 रुपए ले लूं, मेरे पास खुले नहीं है तो ये सर कि दूसरे दुकान से लो भाई अखबार जाके, मेरे पास तो नहीं है खुले। बहुत बड़ी चीज थी वो, बहुत डीप केस स्टडी है वो। सो उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हार्ड टू कम बाय विदाउट एन इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड एथिकल बिजनेस मॉडल। उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लीजिए, देश की जीडीपी हो सकता है आज खूब बढ़ रही हो, लेकिन सडनली आपको एक बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा एक दिन, यदि हमने एथिकल प्रिंसिपल्स की फॉलो नहीं किया, यदि हमने इनोवेटिव एक्शंस नहीं किए। जो आज हम देख रहे हैं ना अपने देश में, इकोनॉमी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, कोई भी नहीं संभाल पा रहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कभी कम करता है, कभी कुछ करता है, कुछ नहीं हुआ उनसे। फिस्कल पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश किया, उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इस समय जरूरत थी डिमांड को इंक्रीज करने की। और डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब हम ऑनेस्टली पॉलिसीज को अप्लाई कर रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ऑफिशियल लेवल्स पे, इंप्लीमेंटेशन लेवल पे करना बहुत ही आवश्यक है। और उनका ये कहना था कि जो लाभ आप इंटीग्रिटी के साथ यानी कि ईमानदारी के साथ कमा रहे हैं, वही आपकी ग्रोथ को आगे ले जाएगा सस्टेनेबल तरीके से, अदरवाइज नहीं। सो हमेशा वो बहुत पॉजिटिव थे। और उन्होंने कहा एंड में, इफ यू आर ऑन ए न्यू मिशन, अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं और एक जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, you should also expect to experience equally challenging problems, defeat those problems and succeed। ये आप बच्चों के लिए जो आप सब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा संदेश है और ये बहुत बड़ा एथिकल प्रिंसिपल है। क्या बोल रहे हैं वो? कि यदि आपने ठान लिया है कुछ नया कार्य करने के लिए, आप इंजीनियर रह के इंजीनियर की नौकरी भी तो कर सकते थे, लेकिन आपने जब एक बार ठान लिया है कि सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हमें अपनी फायर जो अंदर की है उसको जगाना ही पड़ेगा। और हमें पता होना चाहिए कि हम जब कठिन रास्ते पे चल पड़े हैं, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को हमें अपने एथिकल प्रिंसिपल से डिफीट करना है और सक्सेस प्राप्त करनी है। दिस इज व्हाट एपीजे अब्दुल कलाम वाज। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा? किसी के मन में भी कोई क्वेश्चन हो? और अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की यूट्यूब क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा शाम को 8:30 बजे, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैं जब सिविल सर्विस में आया उसके बाद क्या क्या मेरे पास इश्यूज आए एथिकल, कैसे मेरे करियर को मैंने डिफरेंट समस्याओं के साथ कैसे उसको फेस किया, कैसे कुछ असफलताएं भी आई तो कुछ सफलताएं बहुत कैसे आई, और कैसे आईएएस में आप जिंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर सकते हो। यस, यू आर सेइंग व्हाट वाज थॉट्स ऑन पॉलिटिक्स इन इंडिया, वो मैं आज बताना नहीं चाहता था। आगे आने वाली स्लाइड्स वही हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स वही कह रही हैं, लेकिन मैं उसको आज डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, उसको इस प्रॉपर टाइम पर डिस्कस करूंगा। टाइमिंग 8:30 है शाम को, एंड बहुत कुछ आपको एग्जाम के लिए मिलेगा उसके अंदर। और आप ये सीखेंगे कि कैसे हम रोज कोई छोटी छोटी गतिविधियां हमारे चारों तरफ हो रही हैं, तो उनको अगर हम अपने मन में समाते जाएं, तो उस समय जब आप एग्जाम होगा, तो उन घटनाओं का अगर आप रेफरेंस देंगे ना अपनी खुद के साथ जो हो रही हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। क्योंकि GS4 का बेसिक उद्देश्य है कि आप अंदर से क्या है ये निकल के आए।
आपकी थियोरटिकल नॉलेज क्या है उसके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. यस यस बेटा. ओके. So thank you very much. Enjoy your studies and see you in the evening at 8:30 on Unacademy YouTube Articulate. Thank you. Thank you very much. This Articulate, Unacademy Articulate. I'll just write here, Unacademy Articulate. वैसे आप उसमें लिखोगे राकेश शर्मा एथिक्स तो इससे भी आ जाएगा. राकेश शर्मा एथिक्स अन अकेडमी लिखोगे एकदम आ जाएगा. ओके, थैंक यू. ऑल द बेस्ट.